Everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's session, I am going to explain you features and merit of sole trading concern, in which I will explain you features of sole trading and merit or advantage of sole trading concern or business. I hope you must be remembering the meaning of sole trading: business run, owned, managed by the single person. Is known as sole trading concern business, in which all the investment, management, business decision, everything will be done by the single person. Such business is known as sole trading concern. This I have explained you in the introduction part of lesson number 4. And now I would like to explain you features of sole trading concern. First one is individual ownership. Yes, individual means one or single. In case of sole trading business, the ownership is in the hand of a single person. For example, मैंने एक मोबाइल का दुकान खोला, उस मोबाइल को मैंने चालू किया, पैसा मैंने लगाया, तो लॉजिक है उसका मालिक कौन होगा? मैं ही होगा। और इसमें कहा गया the ownership of the business will be in the hand of a single person. Next, common sense है, अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ तो प्रॉफिट भी मैं ही लूंगा और लॉस हुआ तो वो भी मेरे को ही बेयर करना पड़ेगा। और इसलिए जो सेकंड पॉइंट है, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क। In the case of a sole trading concern, the businessman will not share any kind of risk or profit with someone else. Each and everything, all the profit of business will be enjoyed by the single person and all the losses will be bear by the single person in the name of a sole trading concern. अगर बिजनेस में मुनाफा होगा तो वही आदमी मुनाफा पूरा लेके जाएगा और अगर कोई नुकसान हुआ तो वो नुकसान भी उसको अकेले ही बेयर करना पड़ेगा. Then third point, self-employment. Self-employment means the person can start the own business. मतलब इस बिजनेस के अंदर अगर आदमी चाहे कम पैसा इन्वेस्ट करके भी क्या कर सकता है? बिजनेस चालू कर सकता है. वो किसी और के यहाँ नौकरी नहीं करेगा, वो अपना ही पैसा इन्वेस्ट करके खुद के लिए काम करेगा, जिसको मैं नाम देता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. एंड इन द केस ऑफ अ सोल ट्रेडिंग बिजनेस, the businessman is self-employed because he do each and everything alone. तो इससे फायदा क्या होगा? इसका पैसा भी बचता है और वो सारे काम क्या करता है? अकेले ही करता है. नेक्स्ट पॉइंट, लोकल मार्केट ऑपरेशन. Yes, this business can be started in the local market only because of less investment. सोल ट्रेडिंग में ये माना गया है मैक्सिमम परसेंटेज कि बिजनेस लोकल मार्केट में ही चल सकता है. कारण ये है कि इस बिजनेस के अंदर आदमी जो है वो कम इन्वेस्टमेंट करता है, पैसा कम इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इसलिए इसको हाई लेवल पे ऑपरेट नहीं कर सकता. और सोल ट्रेडिंग बिजनेस चालू करने के लिए मैं लोकल एरिया में ही ऑपरेट कर पाऊंगा, क्योंकि वहां पे जो इन्वेस्टमेंट लगता है वो क्या होता है? हमेशा कम होता है. और इसमें कहा गया है कि सोल ट्रेडिंग बिजनेस will be maximum operate in the local market. There are many reasons, but the main reason is investment. For opening the sole trading business, the businessman need or require minimum amount of investment. Next, no separate legal status. इस पॉइंट के अंदर सिर्फ इतना समझना, सोल ट्रेडिंग के लिए अलग से कोई कानून फ्रेम नहीं किया गया. आपके पास बेसिक लाइसेंस होना चाहिए वो बिजनेस चालू करने का. अगर आप रेंट पे चालू कर रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए. अगर आपका खुद का शॉप है या खुद की जगह है तो इंडिविजुअल ओनरशिप होना चाहिए जगह का. और उसके बाद आप बिजनेस चालू कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अलग से कानून फ्रेम नहीं किया गया है इन द केस ऑफ द सोल ट्रेडिंग कंसेप्ट. Next one, minimum government regulation. For starting the sole trading business, the businessman has to follow minimum government regulation. मतलब ये बिजनेस चालू करने के लिए गवर्नमेंट के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन
इसका कारण ये है, लोकल मार्केट में बिजनेस ऑपरेट होता है, इन्वेस्टमेंट लेस होता है, तो गवर्नमेंट ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं देती। I have given you the example. If I am opening business where I am planning to open my mobile shop, तो for opening the mobile shop सिर्फ रेंट एग्रीमेंट चाहिए और मोबाइल बिजनेस चालू करने के लिए जो लाइसेंस चाहिए वही काफी है। जैसे मेरे पास पेपर आ जाएंगे मैं बिजनेस चालू कर दूंगा, और इसलिए कहा गया है ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको हमेशा मिनिमम गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन मिलेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज मींस जब तक बिजनेस चलेगा बिजनेस को रिलेटेड जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी वो सारी अकेले ही कौन बेयर करेगा? सोल ट्रेडर। मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट करना, रिस्क बेयर करना, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जो खर्चा लगेगा, ये सारा खर्चा लायबिलिटीज जो भी बिजनेस का रहेगा वो सब अकेले सोल ट्रेडर करेगा। और वो कब तक करेगा? जब तक वो बिजनेस रन करे। और इसलिए कहा गया है कि सोल ट्रेडिंग में लायबिलिटीज हमेशा अनलिमिटेड होती है, कभी खत्म नहीं होती है जब तक वो बिजनेस रन करता है। सो आई होप ये फर्स्ट सेक्शन समझा रहेगा जहां पे हमने बेसिक फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न देखा। अब देखेंगे एडवांटेज और मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। इस बिजनेस को चालू करने से क्या क्या एडवांटेज होगा, क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहले होगा इजी फॉर्मेशन। यस, यू कैन ओपन दिस बिजनेस इन अ वेरी कॉमन वे बिकॉज ऑफ अ मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन। सोल ट्रेडिंग चालू करने के लिए आपको कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, आप आराम से वो दुकान को चालू कर सकते हैं, बिजनेस को फॉर्म कर सकते हैं। और यही अच्छी बात है कि क्विकली यू कैन फॉर्म द बिजनेस। सेकेंड पॉइंट, क्विक डिसीजन because he is the single owner। अकेला मालिक होने की वजह से वो अपने बिजनेस के लिए क्या करेगा? क्विक डिसीजन ले सकता है, उसको किसी से राय विचार नहीं करना है। और ये अच्छी बात है क्योंकि कहते हैं इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना जल्दी बिजनेस में डिसीजन लोगे उतना जल्दी बिजनेस को क्या होगा? फायदा होगा। और जितना डिले करोगे उतना ही बिजनेस इफेक्ट होगा। और ये क्या जा रहा है? इन अ केस ऑफ अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न द बिजनेसमैन कैन टेक द क्विक डिसीजन व्हिच विल बी बेनिफिट फॉर हिज बिजनेस। नेक्स्ट, मैक्सिमम सीक्रेसी, जिसको मैं सीक्रेट कहता हूं। इस बिजनेस में मैक्सिमम सीक्रेसी रहती है सिर्फ 3 वजह से। नो इंफॉर्मेशन, सोल ट्रेडर को अपने बिजनेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन किसको नहीं देना है, ना किसी कस्टमर को अपना बैलेंस शीट या अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाना है। वो बिजनेस किस तरह से करता है उसके बारे में भी इसको कोई जानकारी किसी को नहीं देना। मतलब सोल ट्रेडर जो है वो पूरा सीक्रेसी मेंटेन करता है अपने बिजनेस में, जो अच्छी बात है क्योंकि जितना वो अपना इंफॉर्मेशन हाइड करेगा उससे कहा गया दिस इज द बिग बेनिफिट और बिग एडवांटेज इन द केस ऑफ अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट मोटिवेशन। मोटिवेशन मींस गेटिंग सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। सही बात है, बिजनेसमैन जितना प्रॉफिट इंक्रीज अर्न करेगा उसका बिजनेस करने का कॉन्फिडेंस इतना इंक्रीज होगा, तो लॉजिक है उसका मोटिवेशन भी क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। इस पॉइंट का मतलब ये है कि बिजनेसमैन का डायरेक्ट रिलेशन रहता है बिजनेस के अंदर। प्रॉफिट और कॉन्फिडेंस या मोटिवेशन दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं। इसको किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, मोटिवेशन होने की जरूरत नहीं है बिजनेस को रन करने के लिए। वो जैसे जैसे प्रॉफिट अर्न करता जाएगा वैसे वैसे वो क्या होगा? अपने आप को मोटिवेट करेगा और अच्छे से बिजनेस परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी, चेंजेबल। Because of a minimum government rules and regulation, whenever want, sole trader can change a line of a business. गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन कम होने की वजह से बिजनेस को इजी वे से फॉर्म करने की वजह से ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है सोल ट्रेडिंग बिजनेस में।
जब भी मन करेगा सोल ट्रेडर अपने लाइन ऑफ बिजनेस को चेंज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मोबाइल का बिजनेस नहीं चला तो मैं इसी जगह पे मोबाइल का बिजनेस बंद करके कोई और भी बिजनेस चालू कर सकता हूँ विदाउट फेसिंग एनी प्रॉब्लम। And this is the biggest benefit. I get the flexibility in the case of a sole trading concern. मैं जब चाहूंगा अपना लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर सकता हूँ, मैं जब चाहूंगा अपने बिजनेस को कन्वर्ट कर सकता हूँ विदाउट फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट, लोअर कॉस्ट। Lower cost means lower investment also. In a case of a sole trading concern, the investment which required for running or opening the business is very less. कम पैसे में भी ये बिजनेस चालू कर सकते हैं, कम पैसे में बिजनेस को रन कर सकते हैं और प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। और यही एक अच्छी बात बताई गई है कि अगर आपके पास 50,000 लाख रुपया भी है तो आप स्मॉल सोल ट्रेडिंग बिजनेस चालू कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस को चालू करने के लिए आपको ज्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। एंड फाइनली एफिशिएंसी, जिसको मैं काबिलियत कह सकता हूँ, बिकॉज ऑफ लोअर कॉस्ट, मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, the businessman get full confidence and efficiency to run the business. वो अपनी काबिलियत अपने हिसाब से क्या करेगा, बिजनेस को रन कर सकता है। और इस तरह से ये वो कुछ अच्छी बात देखी गई है जब कभी भी कोई भी सोल ट्रेडिंग बिजनेस चालू करे। तो इन today's session I will explain features and merit of a sole trading concern, in which we have seen some basic features like individual ownership, no sharing of profit and risk, self-employment, the business is run in the local market operation, there is no separate rules and regulation for opening a sole trading business, the business can be formed with the minimum government regulation, and the liabilities of sole trader is always unlimited. And then I will explain merit or advantage of a sole trading concern, in which I have explained you the formation of the business is very simple. The businessman can take quick decision because he is the single owner. In sole trading, the businessman can maintain full maximum secrecy. He don't have to inform any kind of business information to anyone. There is direct relation between the profit and the money efficiency. So the motivation of a businessman get increased whenever he will earn the good amount of profit. Then flexibility which can be changeable, जब भी चाहिए वो बिजनेस को चेंज कर सकता है अपने जरूरत के हिसाब से, अपने प्रॉफिट के हिसाब से। For opening the sole trading concern, there is a lower investment. Because of a less investment, the business can be opened in a very quick way. And finally, efficiency. So I hope the concept is clear. Thank you very much.